नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 5 स्क्यूनेस। अब तक चैप्टर 4 तक हमने सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पढ़ा है। चैप्टर 3 सेंट्रल टेंडेंसी डील्स विथ मीन, मीडियन मीन्स क्वार्टाइल 2, मोड। चैप्टर 4 डिस्पर्सन्स में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब टॉपिक हमने चेक किए। डिस्पर्सन का मतलब होता है हाउ द ऑब्जर्वेशंस आर स्कैटर्ड, यानी ऑब्जर्वेशंस कितने फैले हुए हैं फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स मीन मीडियन मोड से कितने डिस्पर्स यानी फैले हुए ऑब्जर्वेशंस, उसका जो मेजरमेंट था वो है चैप्टर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। दिस चैप्टर इज स्क्यूनेस because dispersion and central tendency analysis is not sufficient to give complete idea about this data or observation. So we can conclude that the measure of central tendency and dispersion give only partial information about the data and observation. To get complete or more information, we need to obtain that frequency curve, और frequency curve के basis पे we can study the level of skewness. तो skewness के लिए हम ये कह सकते हैं first of all that frequency distribution is to be divided in two parts. There are two types of frequency distribution, means the observation are presented in a frequency curve, and on the basis of the shape, the size and the type of this frequency curve, we can define that there are two types of frequency distribution. One is symmetric distribution and second is skewed frequency distribution. अब symmetric frequency distribution में when we present the observations in a frequency curve on a graph paper, we can obtain perfectly bell-shaped curve, where on a central line mean, median and mode is having same value. Mean, median and mode is having same value. तो symmetric frequency distribution में ये तीनों जो central tendency analysis के key elements है, mean, median, mode, same value, same line पे मिलेंगे हमें. These two quartiles, quartile 1 and quartile 3, are equidistant, are of same distance from this central tendency. वहां से same distance पे रहेंगे, यानी distance between Q2 and Q1 is same as distance between Q2 and Q3. This type of frequency distribution is called symmetric frequency distribution, and the curve obtained for such symmetric frequency distribution is perfectly bell-shaped. It is known as frequency curve. Now skewed frequency distribution, जहां पे वो जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो परफेक्टली बेल शेप नहीं होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड टेल इज एक्सटेंडेड एलोगेटेड, मींस लेफ्ट या राइट साइड की टेल एक्सटेंडेड होगी और मीन मीडियन मोड सेम वैल्यू नहीं होगी, वो सब स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. नॉर्मली हाइपोथेटिकली दिस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्टडीड, बट इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस ऑलवेज स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट. और स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में level of skewness we need to obtain. For that, first of all we need to understand type of skewness, positive skewness and negative skewness. There are two types of skewness. अगर ऑब्जर्व करें पॉजिटिव स्क्यूनेस में, तो फर्स्ट यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स पीक पॉइंट, वहां पे आएगा मोड, देन मीडियन एंड देन एक्स बार यानी मीन. Q1 एंड Q3. नाउ Q1 और Q2 का जो डिस्टेंस है इट इज लेस कंपेयर टू Q2 and Q3. Q1 और Q2 के डिस्टेंस से Q3 और Q2 का डिस्टेंस ज्यादा है. नाउ उसके की एलिमेंट्स फीचर्स, फर्स्ट इज x बार इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन मोड, यानी x बार मींस मीन इज मोर देन मीडियन एंड मीडियन इज मोर देन मोड. मीन इज मोर देन मीडियन and median is more than mode. So we can conclude that mean, median and mode are in decreasing order. Mean, median and mode are in decreasing order, means highest value is for mean, then median और उसके बाद mode. So Q3 minus Q1 means Q3 minus M is greater than, this distance is more compared to this Q2 minus Q1 means M minus Q1, and the right side tail of this frequency curve is elongated, expanded. Right side tail is elongated, expanded. जब right side tail elongated, it is called positive skewness, and when left side tail is elongated, it is called negative skewness, where x bar less than m less than mode. ये frequency curve में अगर observe करें तो सबसे पहले यहाँ x bar हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे मोड, और इन बिटवीन दिस टू
इट्स अ वैल्यू ऑफ मीडियन, यानी यहाँ पे भी x बार m और मोड की वैल्यू डिफरेंट है. हियर इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड इन दिस केस नेगेटिव स्क्यूनेस it is in ascending or increasing order. So mean, median and mode are in increasing order. So x bar is less than m is less than mode. यानी mean is less than median is less than mode. Mean is less than median and it is less than mode. So this type of frequency distribution is called skewed frequency distribution, where either right side tail or left side tail is elongated, expanded. In case of positive skewness, right tail is elongated. In case of negative skewness, left side tail is elongated. But in case of lack of skewness, which is called symmetric frequency distribution, these two quartiles are at equal distance. यहाँ पे positive skewness के केस में Q3 minus M is more compared to Q2 minus Q1, and in this case Q3 minus M is less than Q2 minus Q1, means M minus Q1. So Q3 minus M is less than M minus Q1. But in this case, Q3 minus M, this distance is equal, same as Q2 minus Q1 or M minus Q1. So we can conclude that both the quartiles are at equal distance from the central tendency, and it is same value for mean, median and mode in case of symmetric frequency distribution. And the bell means the curve which is obtained, frequency curve which is obtained for such frequency distribution, it is perfectly bell shaped. So in this chapter we will study type of skewness and different methods of skewness. Now skewness can be presented with two different measures. One is absolute measure and second is relative measure. Absolute measure is symbolically presented as SK. Absolute measure is symbolically presented as SK and it is presented with unit of measurement. यानी क्वेश्चन में जो हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया है उसके साथ ये प्रेजेंट होगा. एंड रिलेटिव मेजर, दिस रिलेटिव मेजर is without unit of measurement. This relative measure is without unit of measurements. Now there are two methods to present to find out this skewness. First is Karl-Pearson method and second is Bowley's method. Karl-Pearson method and Bowley's method. तो सबसे पहले हमें Karl-Pearson मेथड स्टडी करना है. मेजर्स दो रहेंगे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर. एब्सोल्यूट मेजर इज विथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिंबॉलिकली नोन एज SK, and second is relative measure without unit of measurement and symbolically small j. Methods Karl-Pearson method and Bowley's method. Karl-Pearson method is part of exercise 5.1. First of all, let us discuss these formulas for skewness and coefficient of skewness. Skewness is x bar minus mode. X bar minus mode. So this is first formula for skewness. Skewness equals to x bar minus mode. This is absolute measure skewness. Now relative measure is coefficient of skewness. To find out coefficient of skewness, it is J equals to x bar minus mode upon S. X bar minus mode upon S. S is standard deviation. तो हमें ये जो की एलिमेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो याद होना चाहिए. उसके लिए मैं पास्ट जो चैप्टर्स है, चैप्टर स्पेशली चैप्टर 3 and 4, उसका कंप्लीट आइडिया चाहिए हमें. x bar minus mode upon standard deviation. So these two formula is for skewness and coefficient of skewness. In those cases or circumstances where mode is ill-defined, ill-defined means cannot be defined precisely. There are two special conditions where mode is ill-defined. First is unequal frequency distribution, means frequency distribution with unequal class length. And second, where tie in highest observation, tie in equal class length, tie in highest observation. highest जो observations है, highest जो frequency है, उसमें अगर tie हो जाए या unequal class length हो, ये दो circumstances में mode is ill defined, means cannot be defined precisely. So nearby approximate value is obtained on the basis of approximate formula, empirical formula. उसके लिए mode की formula है 3m minus 2x bar, that you know already. Mode is equal to 3m minus 2x bar. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई जहां पे हम मोड फाइंड आउट नहीं कर सकते तो उसके लिए मोड की जगह पे हम लिखेंगे 3m minus 2x bar. तो x bar स्क्यूनेस की फॉर्मूला इस तरह से एक्सपांड होगी, x bar minus 3m minus 2x bar. इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x bar minus 3m माइनस माइनस प्लस होके प्लस 2x bar. सो 3x bar minus 3m, 3 कॉमन आएगा तो x bar minus m.
तो इन केस वेयर मोड इज इल डिफाइंड, स्क्यूनेस की फॉर्मूला ऑल्टर हो जाएगी, एक्स बार माइनस मोड की जगह हो जाएगा 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन, 3 इंटू एक्स बार माइनस एम. Formula will be 3 into x bar minus m, and in this case if we are required to calculate about the coefficient of skewness, then j की formula हो जाएगी 3 into x bar minus m. In all normal cases, whenever Karl Pearson skewness or coefficient skewness is asked, this first formula is used. ये जो डॉट किए दोनों फॉर्मूला यूज होंगे स्क्यूनेस के लिए और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए. ओनली इन केस ऑफ इल डिफाइंड मोड, whenever approximate or empirical formula is to be used, skewness के लिए फॉर्मूला होगी 3 into x bar minus m और j के लिए फॉर्मूला होगी 3 into x bar minus m upon s. और वो circumstances हो गए frequency distribution with unequal classes and in equal classes tie in highest frequency. एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह डिमांड ऑफ मिल्क पाउच के बारे में, जिसके लिए हमें x दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और फ्रीक्वेंसी है 2 7 10 15 12 7 4 एंड 2. नाउ पहले चेक करेंगे हम यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 और 15 एक ही जगह पे है, इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में कोई टाई नहीं है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला यूज होगी. अब उसके लिए जो की एलिमेंट है वो है एक्स बार है, मोड है और स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो उसके लिए नेसेसरी कॉलम्स वी नीड टू प्रिपेयर. अब एक्स बार की फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, जिसके लिए यहाँ पे कॉलम प्रिपेयर होगा एफ आई एक्स आई. एंड देन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एस के लिए एक और कॉलम होगा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन एफ आई इंटू एक्स आई 1 इंटू 2 into 7 14, 3 into 10 30, 4 into 15 60, 5 into 12 60, 6 into 7 42, 7 into 4 is 28 and 8 into 2 16. So total value यहाँ पे FIXI की आएगी, FIXI की टोटल वैल्यू होगी 252. फ्रीक्वेंसी के यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 59. FIXI स्क्वायर ये कॉलम को ऑब्टेन करने के लिए FIXI इंटू XI करना है, यानी 2 into 1 2, 14 into 2 28, 30 into 3 90, 60 into 4 240, 60 into 5 300, 42 into 6 252, 28 into 7 196 and 16 into 8 128. टोटल सिग्मा मींस FIXI का टोटल है 252, FIXI स्क्वायर का टोटल है 1236. अब सबसे पहले x बार फाइंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा FIXI अपॉन n. FIXI का टोटल है 252 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 59. 252 by 59 is 4.27 milk pouch. Unit of measurement is demand of milk pouch. जो वेरिएबल है वो है डिमांड ऑफ मिल्क पाउच. तो यहाँ पे 4.27 मिल्क पाउच. मोड होगा हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो XI है वो मोड की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, उसके अगेंस्ट जो XI की वैल्यू है वो मोड आएगा, इसलिए मोड की वैल्यू होगी 4 मिल्क पाउच. यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने हमें XI याद रखना है. मोड के लिए डायरेक्ट वैल्यू ऑब्टेन की जाती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होगी रूट सिग्मा FIXI स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा FIXI अपॉन एन दी होल स्क्वायर. तो रूट में पहले FIXI स्क्वायर, ध्यान रहे यहाँ FIXI स्क्वायर यानी FIXI दी होल स्क्वायर नहीं है, FIXI इंटू XI करना है, यानी FIXI इंटू XI करने पे FI इंटू XI स्क्वायर आएगा. इसलिए यहाँ पे रूट सिग्मा FIXI स्क्वायर अपॉन एन माइनस सेकंड यहाँ पे ब्रैकेट में सिग्मा FIXI अपॉन एन दी होल स्क्वायर, सिग्मा FIXI अपॉन एन दी होल स्क्वायर. रूट में FIXI स्क्वायर की वैल्यू है 1236 अपॉन एन इज 59 माइनस, अभी ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे x बार का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला FIXI अपॉन एन दी होल स्क्वायर है, इसलिए x बार का स्क्वायर है. लेकिन x बार जब भी पॉइंट में हो तब हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है, नहीं तो आंसर में डिस्क्रिपेंसी आएगी. तो उसका जो स्टेप है FIXI अपॉन एन वही स्टेप लिखना है, यानी 252 अपॉन 59 उसको डिवाइड करके फिर जो भी वैल्यू आती है कैल्शियम में उसका सीधा स्क्वायर कर देना है, जो भी वैल्यू है उसका सीधा स्क्वायर कर देना है. तो वहां पे 18.24 इसका स्क्वायर करने पे आएगी वैल्यू 18.24, यानी 252 अपॉन 59 इंटू इक्वल टू करने पे कैल्शियम में आपको डायरेक्ट इसका स्क्वायर दिखाई देगा 4.27 का स्क्वायर करने पे, और ये वैल्यू का स्क्वायर करने पे थोड़ा मार्जिनल डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से फाइनल आंसर में उसकी इंपैक्ट आएगी. टू एलिमिनेट दैट प्रॉब्लम, जब भी x बार पॉइंट में आता है हमें उसका कैल्शियम में डायरेक्ट पहले डिवीजन करके
फिर 2 बार मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू करेंगे तो सीधा उसका स्क्वायर मिलेगा। तो ये 18.24 यहाँ पे उसका स्क्वायर की वैल्यू है। माइनस करने पे डिफरेंस आएगा 2.71, उसका स्क्वायर रूट ऑब्टेन करेंगे तो एस के लिए वैल्यू है 1.646। अब यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है वो है मोर देन 5, सो उसकी इंपैक्ट सेकंड डिजिट पे पास ऑन होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फाइनल आंसर है 1.65 मिल्क पाउच, 1.65 मिल्क पाउच। नाउ एस के स्क्यूनेस जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, ये तो नेसेसरी सब्सटेंसेस या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है स्क्यूनेस तक पहुंचने के लिए। अब हमारा फाइनल आंसर है स्क्यूनेस के लिए x बार माइनस मोड। तो x बार की वैल्यू है 4.27 और मोड है 4, 4.27 माइनस 4, तो स्क्यूनेस का फाइनल आंसर होगा 0.27 मिल्क पाउच, because skewness is absolute measure and it is presented always with unit of measurement. Further calculation, we are asked to compute coefficient of skewness. It is relative measure without unit of measurement and its formula is x bar minus mode upon standard deviation. तो x बार की वैल्यू है 4.27, मोड है 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.65। 4.27 माइनस 4 इज 0.27 अपॉन 1.65 डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 0.0163। यहाँ पे थर्ड डिजिट इज 3 विच इज लेस देन 5, सो आंसर फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस j is 0.16 and we need to careful while presenting the answer of coefficient of skewness because it's a relative measure and cannot be presented with unit of measurement because relative measure is always free from unit of measurement. So J का आंसर यहाँ पे आएगा 0.16। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें टाइम टेकन दिया गया है इन मिनट्स और वो क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, यानी क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो क्लासेस है वो भले इक्वल क्लास लेंथ के है लेकिन इंक्लूसिव क्लास लेंथ के साथ है। ये इंक्लूसिव क्लासेस है, ये जैसे 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 एंड 25 to 29। इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 38421 इक्वल क्लास लेंथ है फर्स्ट पार्ट, और दूसरा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 8, तो 8 2 बार नहीं है यहाँ पे, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई नहीं है, इसलिए नॉर्मल फॉर्मूला यूज होगी, यहाँ पे भी इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं आएगी। एक पार्ट ये क्लियर हुआ। अब हमें नेसेसरी एलिमेंट्स के लिए x बार, मोड और s चाहिए, जिसके लिए नेसेसरी कॉलम है फ्रीक्वेंसी के बाद xi यानी मिड वैल्यू का कॉलम ऑब्टेन करेंगे। मिड वैल्यू इज लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट बाय 2 मींस 5 प्लस 9 बाय 2 यानी 14 बाय 2 यानी 7, 10 प्लस 14 बाय 2 24 बाय 2 यानी 12, 15 प्लस 19 बाय 2 तो उसकी वैल्यू आएगी टोटल 34, सो डिवाइड करने पे आएगा 17, 20 प्लस 24 बाय 2 44 बाय 2 इज 22 एंड 25 प्लस 29 बाय 2 is 27 because total is 54. This is for xi mid value. Now fixi का कॉलम ऑब्टेन करेंगे। fixi के लिए 3 into 7 21, 8 into 12 96, 4 into 17 68, 2 into 22 is 44 and 1 into 27 is 27. लास्ट कॉलम इज ऑफ fixi स्क्वायर, जैसा ये क्वेश्चन में भी हमने ऑब्टेन किया था। fixi स्क्वायर के लिए fixi is to be multiplied with xi, क्योंकि fixi स्क्वायर में स्क्वायर सिर्फ xi के ऊपर है, fixi होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए fi इंटू xi स्क्वायर यानी fixi को xi के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमेशा ये ध्यान रहे fixi स्क्वायर के लिए fixi टू बी मल्टीप्लाइड विथ xi। सो 21 इंटू 7 इज 147, 96 इंटू 12 इज 1152, 68 into 17 is 1156, 44 into 22 is 968, 27 into 27 and its value is 729. Total आएगा fixi का 256 and total for fixi square is 4152. Now next step is for x bar. x bar की फॉर्मूला है सिग्मा fixi upon n and its फॉर्मूला के बाद उसकी वैल्यू है 256, वैल्यू है fixi की, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n is equal to 18. So 256 by 18, 14.22 minutes. 14.22 minutes is the answer for x bar. अब now mode. अब ये जो discrete frequency distribution था उसमें तो highest frequency के सामने जो corresponding xi है वो mode की वैल्यू है, पर ये जो केस है यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी वाला उसमें हमें फॉर्मूला यूज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिसाइड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज दैट क्लास द क्लास विच इज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास है यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 के सामने क्लास है 10 to 14. So first of all, model class is 10 to 14. Now this is inclusive boundary point to be converted into exclusive class limit.
यहाँ पे जो गैप है, जो डिफरेंस है, जैसे 9 और 10 यानी 1 का डिफरेंस है, तो 1/2 इज 0.5। टू कन्वर्ट दिस इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव यानी एक्सपांड करनी हमें क्लास लिमिट, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर बाउंड्री पॉइंट में 0.5 प्लस करेंगे, तब जाके इंक्लूसिव में से वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट होगा। तो लोअर में से माइनस करना है 0.5, अपर में 0.5 प्लस करना है। तो 10 to 14 की जगह वो मॉडल क्लास एक्सक्लूसिव लिमिट्स के साथ प्रेजेंट करेंगे, तो होगा 9.5 to 14.5। नाउ L means lower boundary point of this model class is 9.5. Frequency of model class is 8. Now the frequency of class previous class to model class, preceding class to model class is 3, यानी F1 is 3, and frequency of succeeding class, next class to the model class is 4, F2 is equal to 4. मोड की जो फॉर्मूला है वो है मोड इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। इसमें वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू 9.5 प्लस FM इज 8, F1 3 अपॉन 2 इंटू FM 8 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 5, 8 माइनस 3 होगा 5, 5 इज मल्टीप्लाइड विथ 5, 5 इंटू 5 25, यहाँ 8 इंटू 2 होगा 16, 16 माइनस 7 इज 9, सो 25/9 इज 2.777 एंड इट इज एडेड विथ 9.5, सो मोड का आंसर आएगा 12.2777। यहाँ पे थर्ड डिजिट की जो वैल्यू है it is greater than 5, so impact is to be passed on second digit and ultimately answer for mode will be 12.28 minutes। 12.28 minutes। तो एक एलिमेंट x बार मिला, दूसरा मिला मोड। अब हमें जाना है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है रूट सिग्मा fi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi अपॉन n दी होल स्क्वायर। fi स्क्वायर की जो यहाँ पे वैल्यू हमें मिली थी वो है 1236, fi स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिली थी यहाँ पे वो है 4152। ये क्वेश्चन में 4152 अपॉन 18, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 18। नाउ fi अपॉन n दी होल स्क्वायर यानी 256 बाय 18 द होल स्क्वायर, 230 माइनस 6666 माइनस 202.271, 202 यहाँ पे 256 बाय 18 करना है पहले, देन इनटू इक्वल टू, और वहां पे आपको स्क्वायर मिल जाएगा 202.271, 230.66 में से इसको माइनस करने पे 28.395, उसका रूट लेने पे 5.328। नाउ थर्ड डिजिट इज मोर देन 5, सो इफेक्ट इज पास ऑन टू द सेकंड डिजिट। 5.33 is the final answer for standard deviation, 5.33 minutes, because standard deviation is also absolute measure just like mean and mode। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 5.33 मिनट्स। उसके बाद है स्क्यूनेस x बार माइनस मोड, x बार की वैल्यू है 14.22 एंड मोड की जो वैल्यू है 12.28, 14.22 माइनस 12.28 is 1.94 minutes is the answer for skewness, absolute measure and relative measure। coefficient of skewness ये भी पूछा गया है हमें, coefficient of skewness J is equal to x bar minus mod upon S, 4.22 minus 12.28 upon 5.33, ऊपर माइनस करने पे 1.94 अपॉन 5.33, सो 0.3639। यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है वो है 3 और यहाँ पे इफेक्ट पास ऑन नहीं होगी क्योंकि लेस देन 5 है, इसलिए अल्टीमेटली आंसर जो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वो होगा 0.36। तो ये जो दो क्वेश्चंस हमने देखे अभी वो कार्ल पियर्सन की मेथड है। इसमें फर्दर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, इसमें कई जगहों पे एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज होगी क्योंकि अनइक्वल क्लास लेंथ आएगी, फिर इक्वल क्लास के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई होगी। इन दैट सिचुएशन जब मोड फाइंड नहीं होगा तब इंपेरिकल फार्मूला से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पहले मीडियन का, और उसके बाद ये दो फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए, एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।